Welcome back, everyone. Open source is the cornerstone of collaborative software development, where the communities of developers come together to create and maintain high quality software that is free for anyone to use, modify, and distribute. Let's dive into the power of open source and explore the technology blocks that are sometimes overlooked but have immense potential for growth and innovation. Introducing our esteemed speaker, Amit Tripathi, Senior Tech Team member in NSEC and a highly respected expert in the field of open source. With his extensive experience and in-depth knowledge, Amit Bhaiya has made significant contributions in the world of open source. A contributor in Genome Organization, a highly skilled expert in the field of open source technology, and is continuously contributing to open source initiatives. We are honored to have Amit Bhaiya as our speaker today, and we are confident that his expertise and insights will provide valuable learnings to all the attendees. I would like to request Amit Bhaiya to commence this event. Hello everyone, am I audible? Yes. Yeah, first of all, thanks for having me today, right? So आज का सेशन में हम लोग ओपन सोर्स के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, right? So open source is a very interesting and important field in 2023 as well, right? Because अब चीजें ऑनलाइन जा रही हैं धीरे-धीरे, right? So remote jobs का भी एक नया कल्चर आ रहा है. So without open source, without Git and GitHub, remote jobs भी impossible हैं. So this session is going to be very very important for everyone, right? So with this, let's get started. So आज का एजेंडा ये है कि पहले हम पढ़ेंगे क्या है ओपन सोर्स और उससे रिलेटेड टर्म्स जैसे OSS और FOSS क्या है, एंड देन देखेंगे गिट एंड गिटहब क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड देन वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशंस कि कितनी करनी चाहिए और ये इंडस्ट्री में रेलेवेंट हैं अभी या नहीं, राइट? एंड देन ये सब जानने के बाद हम देखेंगे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स कितने हैं जो ऑल राउंड द ईयर चलते रहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. एंड आफ्टर दैट yeah, after that we'll make our first contribution, right? So with this, let's get started. So एक लेट छोटा सा नोट सबके लिए कि ये जो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है ये कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, राइट? ये सबके लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे कोई किसी भी फील्ड का हो, बीट आपका वेब डेवलपमेंट, बीट डीएसए, बीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, राइट? इवन इफ यू आर इनटू डीएसए. Yeah. Am I visible and audible, everyone? Can you please recheck? Hello. Okay. भैया आप ऑडिबल हो. Yeah. So let me turn off my camera, right? ज़्यादा अच्छा उससे फ्लो रहता है स्पीड इंटरनेट की. सो या अ लिटिल नोट फॉर एवरीवन कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ओपन सोर्स और गिट एंड गिटहब सबके लिए यूजफुल होने वाला है, राइट? चाहे आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हो या वेब डेवलपमेंट में हो, राइट? सो आपको अपना कोड गिटहब पे डालना ही पड़ेगा इवेंचुअली, which is very important as a developer. So with this, uh, introduction to open source. So first, open source क्या है, right? Open source software वो चीज है जिसका code publicly available हो, right? Anyone can see, modify and distribute this code. Secondly, ये एक decentralized तरीका होता है सबको सबके पास पावर देने का, right? अगर आप किसी
Meantime, I request to all of you to please follow us on social media to stay connected with the amazing community we are building. There has been some connectivity issues from Amit Bhaiya's end, so I request you to please be connected with us. Thank you. Hello. Hello, am I audible and visible, everyone? Sorry for the glitches. Amit Bhaiya, you are audible, but your video is not visible. Yeah. How about now? Not yet. Is it visible now? No, Bhaiya. स्क्रीन शेयर हो रही है? No. यार शेयर तो किया है. Wait a second, let me rejoin. Maybe. हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? Yes, Bhaiya. या ओके. सो लास्ट टाइम मैं कहाँ पे था? Okay, so let me start again with the first slide. So basically, open source क्या होता है? ओपन सोर्स इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, राइट, जो अब पब्लिकली अवेलेबल होता है. ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड पब्लिकली you can see it, right? Anyone can see, modify and distribute that code. And secondly, it's in decentralized fashion, right? Suppose you want to add some new feature in the application, so तुम्हें डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि उसे बोलो कि तुम एक नया फीचर क्रिएट करो, राइट? यू कैन राइट दैट न्यू फीचर विद ऑन योरसेल्फ, राइट, विद योरसेल्फ. सो तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम जरूर हमेशा हेड को कॉल करो कोई भी बग फिक्स करने के लिए या कोई नया फीचर ऐड करने के लिए. सबके पास पावर होती है, जितने भी उस प्रोजेक्ट के मेंबर हैं, उस फीचर को ऐड करने के लिए. और जरूरी नहीं कि यू आर ऑफिशियली द मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट. एज अ टेक एंथुसियास्ट तुम उसमें काम कर सकते हो, राइट? सो कुछ फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो तुमने सुने होंगे और अपनी यूज भी किए होंगे, आई गेस. मोजिला फायरफॉक्स, जैसे
and VLC and Blender and Linux, right? So Mozilla Firefox का कोड पब्लिकली तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम गूगल करोगे Mozilla GitHub, and same with VLC and Linux as well and Blender as well, right? So मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे ही मैंने VLC का कोड खोल रखा है, राइट? सो अगर तुम टाइप करो गूगल पे VLC GitHub, so you would get to know this GitHub अकाउंट ऑफ VLC, और उस पर सारा का सारा डेटा और कोड पड़ा हुआ है, राइट? और वहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने में, राइट? C++, ऑब्जेक्टिव सी, QML, मेक फाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विद दिस अगला, या सो गिट एंड गिटहब, राइट? जैसे तुम ओपन सोर्स स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली टर्म जो तुम सुनोगे वो है गिट एंड गिटहब। सो ये बहुत कोई ऐसे एडवांस चीज नहीं है, एक सिंपल चीज है बस। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना। नाउ यू विल आस्क कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम कुछ नहीं होता, बस एक फाइल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करने का एक सिस्टम है, राइट? सपोज एक फाइल है और उसको 10 लोगों को हमें डिवाइड करना है, उस फाइल में 10 लोग काम करेंगे। सो जरूर तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन सा इंसान किस पार्ट पे काम करे। उसके लिए हमने एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम तैयार किया, एंड विद दिस उस पार्टिकुलर फाइल की हम डिफरेंट कॉपीज क्रिएट कर देते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन लोगों में जो उस पर काम करेंगे। तो इससे जो हमारी ओरिजिनलिटी रहती है प्रोजेक्ट की वो बनी रहती है, और मान लो कल को कोई एरर भी आता है तो वो भी हम फिक्स कर सकते हैं अगर हमारे पास ओरिजिनल कोड पड़ा है तो। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ 3 बार लिखा है वेरी वेरी वेरी, बिकॉज अगर तुम किसी कंपनी में काम करोगे या बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये कोलैबोरेशन बहुत हेल्प करता है, राइट? मैंने कोलैबोरेशन वाला वर्ड लिखा नहीं है क्योंकि शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ ना आए। सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा है कि वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल, सो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक बहुत बड़ा सेवियर की तरह काम करता है वहाँ पे, राइट? एंड देन गिटहब, गिटहब कुछ नहीं है, गिटहब एक वेबसाइट है जो बेस्ड है गिट पे। जो लाइक गिट तुम्हारा लोकली सिस्टम पे इंस्टॉल रहता है एंड गिटहब तुम्हारा ब्राउजर पे है, राइट? इंटरनेट पे। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गिट की। सो बेसिकली ऑफिशियली इसका ये डेफिनेशन है, इट हेल्प्स यू ट्रैक डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर कोड एंड कोलैबोरेट विद अदर डेवलपर्स। सो मैं इसे यहाँ सिंपल एक प्रैक्टिकल फाइल प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करूंगा, शायद सबको समझ आ जाए उसके बाद। सो सबसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सपोज 3 बच्चे हैं, डेगी सुगी नोबिता एंड सोनियो, राइट? उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है ग्लोबल वार्मिंग पे अपने टीचर को। ओके, सो सिंस डेगीसुगी वाज स्मार्ट, सो अपना काम कर लेगा, बट नोबिता एंड सुनियो ने अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया और उनके पास अब 1 घंटा बचा है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए। सो अब यहाँ पे ऑप्टिमल ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्टिमल ऑप्शंस ये हैं कि वो डेगीसुगी की फाइल लें और डायरेक्ट उसे उसका फ्रंट पेज चेंज करके सबमिट कर दें, और या बट ऐसे दोनों लोग कर नहीं पाएंगे, राइट? एक ही इंसान ऐसा कर पाएगा, और इससे डेगीसुगी की फाइल की ओरिजिनलिटी भी खराब हो रही है। सो सेकंड ऑप्टिमल ऑप्शन जो शायद सबको पता हो, वो ये है कि राइट फाइल की तुम फोटो कॉपी करोगे, दो फोटो कॉपीज कराओगे और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, नोबिता में और सुनियो में, राइट? और उसके बाद नोबिता को अगर जितने भी एक्स्ट्रा पेजेस ऐड करने होंगे उसमें ऐड कर सकता है, या सुनियो को रिमूव करने हो पेजेस तो उसमें से रिमूव कर सकता है। सो इससे जो डेगुसुगी की ओरिजिनल फाइल है वो मेंटेन रहेगी, राइट? उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हमने। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट? वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। हम एक फाइल लेते हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज बना देते हैं, और जितने लोग होते हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं वो फाइल, राइट? एज अ डिफरेंट वर्जन के नाम से, या और डिफरेंट ब्रांचेस कह सकते हैं उससे। सो जिससे ओरिजिनल जो कोड होता है वो खराब नहीं होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, बिकॉज अगर एक छोटा सा एरर भी आ गया तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। इसलिए अगर हम कोई एरर आए तो हम वापस अपने पिछले वाले वर्जन पे जा सकें। दैट इज व्हाई वी यूज दिस वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट? सो गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है, गिट कुछ नहीं है, बस एक स्मार्ट वे है वर्जन कंट्रोल सिस्टम को कहने की, राइट? एक ही प्रोग्राम है जो इसके ऊपर बना है ऑन द टॉप ऑफ इट। सो अब शायद तुम्हें डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आए। गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और इट वर्क्स लोकली ऑन योर सिस्टम। एंड गिटहब क्या है? गिटहब कुछ नहीं है, बस एक वेबसाइट है। इट इज़ बेस्ड ऑन VCS, version control system, right? VCS is the short form of version control system, of course. एंड जो गिटहब है सारा का सारा वर्जन कंट्रोल कोड अपने अपनी वेबसाइट पे रखता है, राइट? अगर मान लो तुम एक प्रोजेक्ट बनाया तुमने और तुम उसे पुश करोगे ऑनलाइन, तुम्हें किसी मान लो तुम्हें अपने फ्रेंड को भेजना है, राइट? जो कि अमेरिका में बैठा है और तुम अभी इंडिया में हो। सो अगर सिंस जो गिट है वो सिर्फ तुम्हारे सिस्टम पे काम करता है लोकली, तो तुम वैसे वैसे तो भेज नहीं पाओगे। सो इसका एक ऑप्टिमल वे है गिटहब। सो अगर तुम किसी भी लोकेशन पे हो तो इस लोकेशन से तुम दूसरी लोकेशन पे ऑनलाइन गिटहब के थ्रू भेज सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाई गिटहब केम। अदरवाइज आज से 20 या 30 ईयर अगो गिट गिट था, बट द थिंग इज इंटरनेट उतना यूज नहीं होता था।
तो हम एक कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट करके, उसको नेटवर्क कहते थे कुछ टाइम पे, सो उसमें हम फाइल्स को मैनेज करते थे। बट एज इंटरनेट एक्सपेंडेड और रिमोट वर्क भी बढ़ा, तो इसलिए गिटहब आया उस वक्त, राइट। सो ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकें बाय द यूज ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ तुम्हें। सो सपोज एक फाइल है मेरे पास names.txt नाम की, राइट। सो यहाँ पे लिखा है माय नेम इज नोबिता एंड आई स्टडी इन हाई स्कूल, राइट। सो फाइल सेम ही रहेगी, बट मैं इसका वर्जन चेंज कर दूंगा। अभी देखना, इफ आई राइट git check out sunio, राइट। देखिए, देखो यहाँ पे फाइल चेंज हो गई, नेम चेंज हो गया फाइल का। फाइल वही है, फाइल का नाम तो वही है names.txt, बट जो फाइल के अंदर का कंटेंट है वो चेंज कर दिया हमने। माय नेम इज सुनियो ऑन एवरेज, राइट। सपोज हमें इसका डेगी वाला वर्जन देखना है, तो मैं लिखूंगा git check out। तो राइट, सो यहाँ पे वापस नेम चेंज हो गया, माय नेम इज डेगी सुगी, राइट। सो ये इस जो ये हो रहा है, इसके पीछे कौन काम कर रहा है? इसके पीछे वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है। एक फाइल तो एक ही है, बट इसके 3 डिफरेंट वर्जन क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे। और अगर मुझे वापस ओरिजिनल फाइल पे जाना है, तो मैं वापस ओरिजिनल फाइल का नाम लिख दूंगा गेट चेक आउट। तो यहाँ पे वापस हम ओरिजिनल फाइल में चले गए, माय नेम इज नोबिता एंड आई स्टडी इन हाई स्कूल। सो दैट इज द पावर ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और यही सेम चीज ये तो मैंने लोकली अपने सिस्टम पे की, राइट। सो दैट्स द गेट। बट इसको मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ सेम चीज को, तो उसे हम गिटहब कहते हैं। सो यहाँ दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। ये रही हमारी ये सेम चीज को मैंने सेम प्रोजेक्ट को मैंने ऑनलाइन होस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा वर्जन, राइट। दैट इज नोबिता। इसे वैसे ब्रांच कहते हैं हम इसकी टर्म में, गिट की टर्म में। सो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, नोबिता, डेगीसुगी एंड सोनियो, राइट। सो अगर मैं नोबिता में जाऊँ और इसका कंटेंट देखो, फाइल का names.txt, तो यहाँ दिखेगा तुम्हें माय नेम इज नोबिता एंड आई स्टडी इन हाई स्कूल। बट अगर मैं अपना वर्जन चेंज करूँ, सपोज मैं डेगीसुगी में जाऊँ, तो तुम्हें दिखेगा कि कंटेंट चेंज हो गया। फाइल सेम ही है, फाइल अभी भी names.txt है, बट उसका कंटेंट चेंज हो गया। सेम थिंग विद इफ आई क्लिक ऑन सोनियो, सो फाइल का कंटेंट चेंज हो गया, बट फाइल का नेम वही है, राइट। सो ये हो रहा है हमारे फाइल के डिफरेंट वर्जन्स की वजह से, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारा गेट। तो यही सेम चीज जो मैंने अपने कंप्यूटर लोकली पे की थी, वो अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो दैट इज, जो ऑनलाइन वाला पार्ट है वो गिटहब है, और जो लोकल सिस्टम वाला पार्ट है वो गिट है। तो रिस्पॉन्सिबल गिट ही है इन सब चीजों के लिए। गिट ही एक सॉफ्टवेयर है, समझ लो। वो सॉफ्टवेयर को गिटहब ने ऑनलाइन एक तरीके से इंस्टॉल कर रखा है, सिंपल लेमन टर्म में कहूँ तो मैं, राइट। सो विद दैट, या सो बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। सो या सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है कि तुम्हें एक्सपोजर मिलता है रियल कोड। लाइक वैसे तो तुम बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखते रहते होगे ऑनलाइन नेट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के, बट व्हेन यू वर्क ऑन द रियल कोड, राइट, द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, तो तुम्हें वहाँ पे एक अच्छा कोड दिखता है कि राइट, कि कंपनीज में कैसा कोड इस्तेमाल होता है, राइट। सो उससे तुम्हें एक्सपोजर तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा सेट होता है। और उसके बाद तुम्हारी खुद की जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी इंप्रूव होंगे इसकी वजह से, राइट। एंड सेकेंडली, अगर तुम्हारा गिट में कंट्रीब्यूशन काफ़ी है और तुम्हें गिट एंड गिटहब सही से आता है, सो तुम्हारा रिमोट वर्क में भी काफ़ी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि तुम्हें रिमोट वर्क मिल जाए। क्योंकि इसमें तुम अपने रेज्यूमे ज़रूर डालोगे कि यार मैंने गिटहब पे ये किया है, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, या इसमें कंट्रीब्यूट किया है। सो ये अगर तुम्हें रिमोट वर्क चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, गिट एंड गिटहब। थर्डली, अगर तुम किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो लाइकली है कि तुम्हारे उन लोगों के साथ कनेक्शन भी बन जाएंगे जो पहले से वहाँ पे टीम काम कर रही है, राइट। सो और वो बहुत ही काम के कनेक्शन होते हैं। उसमें से काफ़ी लोग उनकी खुद की कंपनी होती है और उनके खुद के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो ये फ्यूचर में काम आ सकती हैं सारे कनेक्शंस, राइट। एंड फोर्थ प्रोजेक्ट पॉइंट इज कि अगर तुम किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो जो उसका कोड है वो हमेशा वहीं रहेगा। सपोज मैंने किसी वीएलसी पे काम किया, सपोज, राइट। सो जो मैंने कोड लिखा उसमें, वो ऑनलाइन शो होगा, राइट। मैं उसका लिंक कॉपी कर सकता हूँ और अपने रेज्यूमे में डाल सकता हूँ उसका लिंक। सो अगर एचआर या मैं किसी कंपनी को भेजूंगा, वहाँ पे एचआर देख सकता है कि यार इस बंदे ने तो कोड किया है। एंड दैट इज एक्चुअली मोर टेंजिबल देन तुम्हारी इंटर्नशिप, बिकॉज इंटर्नशिप में किसी को नहीं पता कि तुमने क्या किया वहाँ पे। तुम अपना कोड शेयर भी नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इंटर्नशिप में एक फॉर्म साइन कराते शुरू में कि लाइक जो तुम्हारा कोड है वो बाहर नहीं जाना चाहिए कंपनी से। तो बेसिकली इंटर्नशिप में वो तो अब वाला फायदा नहीं रहेगा कि तुम अपना कोड शो कर सकते हो किसी कि यार मैंने ये काम किया है इस प्रोजेक्ट में। बट ये ओपन सोर्स में रहता है, ओपन सोर्स में सारा कोड तुम्हारा आज भी और 10 साल बाद भी विजिबल रहेगा। और सेवन पॉइंट इज कि ओपन सोर्स में काम करते करते तुम्हारे गिट एंड गिटहब स्किल्स बहुत ही अच्छी हो जाएंगी ओवर टाइम।
तुम्हारे दोस्तों से, फ्रेंड्स से, पीयर्स से, और इससे क्या होगा कि लाइक तुम्हारे रेज्यूमे पे अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इंडस्ट्री में, गिट एंड गिटहब। सो उसके बाद सम कूल ओपन सोर्स प्रोग्राम्स। पहला प्रोग्राम है हमारा गूगल समर ऑफ कोड, राइट। बेसिकली ये इंटर्नशिप्स की तरह ही होते हैं, और इसमें इन प्रोग्राम्स का तुम पार्ट हो तो तुम कुछ पैसे भी कमा सकते हो, राइट, अपनी स्किल्स से डायरेक्टली, राइट, विदाउट गोइंग आउट ऑफ योर हाउस इवन। सो पहला प्रोग्राम है गूगल समर ऑफ कोड, राइट। इसका स्टाइपेंड होता है अराउंड 2 लाख समथिंग, और ये सारे प्रोग्राम्स इसको मैं डिटेल में दिखा देता हूँ तुम लोग को। सो फर्स्ट है गूगल समर ऑफ कोड, राइट। ये 12 वीक प्लस का प्रोग्राम है, एंड बहुत सारी इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप पार्टिसिपेट करती हैं हर साल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो तुम्हारे टेक स्टैक से मैच करती हो, सपोज अगर तुम वेब डेवलपमेंट में हो तो तुम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो जो वेब डेवलपमेंट में है। अगर तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में तो तुम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में है, राइट। सो यहाँ पे ये फीचर रहता है कि तुम अपने पसंद की ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो, एंड इसका स्टाइपेंड अराउंड 2 लाख रुपीज होता है। अगर तुम इस पार्ट गूगल समर कोड में सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें डायरेक्टली 2 लाख रुपीज मिलते हैं उस साल। एंड इसका टाइमलाइन अराउंड है जनवरी टू अगस्त, राइट। हर साल जनवरी या फरवरी से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं लेना, ये लोग एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन है हमारा लाइनक्स फाउंडेशन मेंटरशिप प्रोग्राम। ये भी सिमिलर ही है, इसमें बेसिकली डेवऑप्स का काम ज़्यादा रहता है लाइनक्स में, फाउंडेशन मेंटरशिप प्रोग्राम में डेवऑप्स एंड डॉकर वगैरह। सो इसमें इसमें भी वैसा ही सेम सीन है, और इसका भी स्टाइपेंड अराउंड 2 लाख रुपीज ईयर रहता है। और बट ये है कि इसमें ये साल में 3 बार कंडक्ट होता है, राइट। मार्च टू मई, जून टू अगस्त, एंड सितंबर टू नवंबर, राइट। इसमें तुम्हारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सेलेक्ट होने की, ज़्यादा चांसेस हैं। एंड थर्ड है हमारी MLH फेलोशिप, राइट। सो MLH फेलोशिप भी हमारी ऐसी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्नशिप कराती है तुम्हें किसी भी इनकी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके साथ, राइट। और इसका स्टाइपेंड बल्कि ज़्यादा है, बट इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी हार्ड रहता है, बहुत कम लोग का सिलेक्शन होता है इसमें। एंड इसका स्टाइपेंड है अराउंड 4 लाख रुपीज, और ये भी साल में 3 बैचेस चलते हैं इसके, जनवरी टू सितंबर तक। लाइक एक शायद फॉल में एक फॉल में, एक समर में, एक स्प्रिंग में, राइट। तो 3 इसके बैचेस होते हैं। उसके बाद है हमारा हैक्टोबर फेस्ट। हैक्टोबर फेस्ट सबसे इजी होता है आई वुड से, राइट। और ये हर साल होता है अक्टूबर में। अगर इसमें बेसिकली तुम्हें किसी भी गिटहब रेपोजिटरी पे 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस करने होते हैं। अगर तुमने 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दिए सिंपल से, इवन इवन इफ इट इज अबाउट सम टेक्स्ट, राइट, कोई टाइपोज के फिक्स किया तुमने, कोई थोड़ा सा तुमने उसका टाइटल भी चेंज किया है, तभी भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन मायने रखते हैं। बेसिकली बस ये इसका इनिशिएटिव ये है कि तुम सीख जाओ गिट एंड गिटहब, राइट। और अगर तुमने 1 महीने के अंदर 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस कर दिए, जो कि तुम कर लोगे आई बिलीव, सो तुम्हें एक एज अ रिवार्ड एक कूल टी शर्ट मिलती है। एंड इसका टाइमलाइन ये है कि ये हर साल अक्टूबर में होता है, राइट। उसके बाद पार्ट 2 द एक्शन। इसमें काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, तुम गूगल कर सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट वाले बता दिए, राइट। आउटरीच भी है, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स भी है, राइट। और बहुत सारे हैं, लाइक अराउंड 20 प्लस होंगे अराउंड द ईयर। तो तुम गूगल करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे, और ग्रुप में डाल देना, मैं भेज दूंगा अगर नहीं मिल रहा किसी को तो। उसके बाद पार्ट 2 द एक्शन, राइट। इस पार्ट में हम देखेंगे कैसे अपना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है। सो उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए पहले तुम्हें, वर्किंग कंप्यूटर और लैपटॉप विद गिट इंस्टॉल्ड। सो अगर किसी भी अभी गिट इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल कर ले गिट गूगल से। एंड सेकेंडली इंटरनेट चाहिए ऑफ कोर्स, एंड थर्ड अ लिटिल ब्रेन, राइट, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए बस। और बहुत सिंपल काम होने वाला है ये, बहुत ज़्यादा तुम्हें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस 4-5 लाइन्स लिखनी है एंड यू आर डन विद द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, फर्स्ट सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद बिफोर मूविंग ऑन, या एक छोटे 2-3 छोटे से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुम लोग को। सो पहले जब हम गिटहब की बात करते हैं तो गिटहब में जो फोल्डर्स होते हैं हम उन्हें पहले रेपोजिटरी कहते हैं, राइट। रेपोजिटरी, अगर तुम थोड़ा सा और एडवांस्ड बन जाओगे तो उसे रेपो कहने लगोगे, रेपो, राइट। रेपोजिटरी और रेपो और फोल्डर इज द सेम थिंग। सो सपोज पहले तुम्हें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, सपोज VLC के प्रोजेक्ट पे काम करना है तुम्हें, राइट। सो जो VLC वाला प्रोजेक्ट होगा उसे हम कहेंगे रियल कोड है वो, राइट। और वो सेंट्रल रेपो है। उसके बाद पहले तुम्हें उसे एक बार फॉर्क क्लोन करना होगा, फॉर्क एंड क्लोन। तो उसके बाद तुम्हारे पास उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, राइट। जैसे नोबिता डोरेमोन वाले एग्जांपल में दिया था मैंने कि नोबिता के पास सुनियो की नहीं, नोबिता के पास डेकिसुकी की फाइल की कॉपी आ जाती है, राइट। तो उसमें वो अपने काम एडिट कर सकता है, अपना काम एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है या रिमूव भी कर सकता है। तो सेम थिंग
तो जो तुम्हें रियल रिपोजिटरी मिलेगी VLC की या किसी भी प्रोजेक्ट की, उससे पहले तुम्हें एक बार क्लोन करना है, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी, राइट। तुम्हारे पास ऑनलाइन कॉपी होगी उसके बाद उस ऑनलाइन कॉपी को तुम्हें अपने कंप्यूटर में डालना है, दैट इज कॉल्ड द लोकल कॉपी, राइट। सो दिस इज अ 3 स्टेप कि तुम उसे अपने कंप्यूटर में कैसे ला सकते हो उस प्रोजेक्ट को। पहले तुम्हें उसको अपने गिटहब अकाउंट में लाना है, एंड फ्रॉम दैट गिटहब अकाउंट उसे तुम्हें अपने पीसी पे लाना है लोकली। तो यहाँ पे गिट कमांड्स लिखिए जो कि हम यूज करेंगे अभी, गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट एंड गिट पुश। सो बेसिकली अगर तुम्हारी कोई एम्प्टी रेपोजिटरी है और राइट उसमें तुम उसमें गिट यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें इससे पहले गिट इनिशिएट करना होगा, राइट। सो उसके लिए तुम्हें यूज करना होगा गिट इनिट। सो इनिट हेयर इज इनिशियलाइज। उसके बाद उसमें तुम कुछ चेंजेस करोगे उस गिट रेपोजिटरी में, मे बी न्यू फाइल ऐड करो या उस फाइल में कोई चेंजेस करो, तो उसको तुम्हें सेव करना होगा। तो फॉर दैट वी हैव गिट ऐड। सो बेसिकली गिट ऐड इज नॉट एक्चुअली सेविंग द फाइल। गिट ऐड से तुम फाइल को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, राइट। एक स्टेज है वहां पे जो जिन फाइल को तुम्हें सेव करना है और जिन फाइल में तुमने चेंजेस किए वो सारे फाइल्स को तुम एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, राइट। और दैट स्टेज इज कॉल्ड द स्टेजिंग एरिया। तो तुम जब 10-12 फाइल पे अपने चेंजेस कर देते हो, जरूरी नहीं कि 10-12 फाइल पे करो, बट होता यही है, अगर तुम 10-12 फाइल पे चेंजेस करते हो और उन सारी फाइल्स को एक जगह ले आते हो, दैट इज कॉल्ड द स्टेजिंग एरिया। एंड आफ्टर दैट उसका तुम एक स्नैपशॉट लेते हो। स्नैपशॉट मींस उस पार्टिकुलर मोमेंट पे सेव करते हो, राइट। सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है कि कौन कौन से चेंजेस किस टाइम किस डेट पे हुए थे। तो वो गिट कमिट्स होता है, राइट। सो व्हेन यू डिड डू गिट कमिट, सो वो फाइल फाइनली सेव हो जाती है इन द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और वो अभी तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे है, राइट। और वंस यू डन मेकिंग चेंजेस, उसे तुम वापस जहाँ से तुमने उठाया था, सपोज तुमने VLC का प्रोजेक्ट उठाया है और तुम्हें उसमें एक नया फीचर ऐड करना है, सपोज उसकी थीम चेंज करनी है, राइट। डार्क थीम लगानी है VLC में, तो तुमने उससे पहले अपने कंप्यूटर पे चेंज किया, राइट। देन गिट ऐड किया ताकि वो स्टेजिंग एरिया में आ जाए, और उसके बाद गिट कमिट किया ताकि वो सेव हो जाए, राइट। उसके बाद वो तुमने जो नया फीचर है वो ऐड कर लिया है अपने लोकल कंप्यूटर पे। ना अब तुम्हें उसे गिट VLC वाले को वापस बताना है कि हाँ जी मैंने एक नया चेंज इसमें डाला है, आप लोग इसे अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो, अपने ओरिजिनल कोड में ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें अपने पहले रिमोट रेपोजिटरी में भेजना पड़ेगा, राइट। सो दैट फॉर दैट वी हैव गिट पुश कमांड। सो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन गिट ऐड एंड गिट कमिट मैंने बता ही दिया है कि जो ऐड होता है उससे हम फाइल्स को स्टेजिंग एरिया पे ले आते हैं, एंड गिट कमिट से फाइल को हम सेव करते हैं, उसका एक स्नैपशॉट लेते हैं बेसिकली, राइट। स्नैपशॉट मींस लाइक उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ उस मोमेंट तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं फाइल में। यहाँ पे लिखा भी है, द स्टेजिंग एरिया कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अप अ set of changes that you want to commit together, and the git add command can be used to push changes in the working area to the staging area, right। तो हर स्टेज पे ले आते हैं हम गिट ऐड कमांड से, उसके बाद हम गिट कमिट करते हैं ताकि वो सारे चेंजेस सेव हो जाएं। एंड उसके बाद मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वर्सेज ओपनिंग अ पुल रिक्वेस्ट। सो बेसिकली मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और ओपनिंग अ पुल रिक्वेस्ट सेम ही चीज़ है, राइट। कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर तुम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो तुम्हें पुल रिक्वेस्ट तो ओपन करनी पड़ेगी, राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इनिशियली कि पुल रिक्वेस्ट होती क्या है। तो सपोज तुमने VLC के प्रोजेक्ट पे काम किया, राइट, और तुमने अपना एक नया फीचर ऐड कर दिया, तुमने अपनी एक नई थीम ऐड कर दी सपोज फॉर एग्जांपल, और अब तुम्हें उस नई थीम को बताना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है मेन VLC की टीम को। तो तुम उसके लिए एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करोगे, इट्स लाइक अ टोकन, राइट। तुम एक अपना एक टोकन बनाओगे और उससे भेजोगे उनके पास और कहोगे कि यार मैंने अपना चेंजेस कर दिया, अब तुम इसे ऐड कर सकते हो मेन कोड में, राइट। तो जो रिक्वेस्ट की है तुमने VLC की टीम से, उसे कहते हैं हम पुल रिक्वेस्ट, राइट। सो पुल रिक्वेस्ट तभी की जा सकती है जब तुम उस चेंजेस को अपने ऑनलाइन रिमोट रिपोजिटरी पे ले आओ, राइट, जो तुमने लोकली किए हैं अपने कंप्यूटर में, जो पहले बताया था मैंने तुम्हें, राइट। तो उसके बाद हम इसे करके देखते हैं एक बार, राइट। लेट्स मेक आवर फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। तो उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा जिसका फास्ट इंटरनेट हो कनेक्शन, एंड जिसको थोड़ी सी भी कोडिंग आती हो या नहीं भी आती हो, कोई बात नहीं, राइट, विल लर्न इट। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे करते हैं फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। सो एनीवन अप फॉर इट? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जिसको करना हो, जिसको सीखना हो, या यू कैन रेज योर हैंड्स। एनीवन इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? या सो जिसने हैंड रेज किया उसे पार्ट प्रेजेंटर बना दो प्लीज। हेलो ग्रेसी। भैया बना दिया मधुर को। Okay, yeah, so Madhur, you can share your screen right now.
Hello, Madhur, are you there? Hello. या अपना माइक भी ऑन कर ले भाई. Hello, am I audible? Hello. Yeah, bro, you are audible. Yes. हाँ जी. वेट अ सेकंड, मैं अपनी रिपोजिटरी का लिंक भेज रहा हूँ और उस पर तुम्हें जाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. वेट अ सेकंड, जस्ट a minute. या सो मधुर, तुम्हें लिंक दिख रहा है कमेंट बॉक्स में? ये गिटहब रिपोजिटरी का लिंक है. यहाँ नहीं, टीम्स में. अरे कहाँ पर है टीम्स में? हेलो. कमेंट सेक्शन में. सॉरी मैं Chat यूज नहीं में कर रहा टीम्स में. टीम्स. चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें मेरे पास. हेलो, कहाँ पर भेजा? सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा. या वेट, अभी करवा रहा हूँ मैं उसे. हेलो मधुर, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी पहले एंटायर स्क्रीन शेयर करो. आई गेस तुमने सिर्फ ब्राउजर शेयर किया अपना. प्रेजेंटेशन स्टॉप करो और वापस एंटायर स्क्रीन शेयर करना, ठीक है? या कूल, तो तुम्हें लिंक दिख गया? हाँ जी, लिंक मिल गया मेरे को व्हाट्सएप पर. यही है ना रिपोजिटरी? या एग्जैक्टली. तो तुमने गिट इंस्टॉल कर रखा अपने सिस्टम में? गिटहब पे अकाउंट है, वैसे इंस्टॉल नहीं कर रखा. तो या कूल, हमें वही चाहिए था. सो अब तुम गूगल पे जाओ और उसे इंस्टॉल करो. कैसे? या टाइप git install for windows, git for windows, anything related to that. या सो ये पहला लिंक वाला? क्लिक करना है. या एग्जैक्टली. या कूल, अब से इंस्टॉल कर लो. नेक्स्ट क्लिक करते जाना, राइट? कोई तुम्हें चेंजेस करने की जरूरत हाँ. नहीं है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में. ओके. हो गया इंस्टॉल?
हो रहा है okay. इंस्टॉल हो रहा है। तो सारे लोग ये वाला प्रोसीजर ध्यान से देखना, राइट। सबको टास्क मिलेगा कि उसमें जो फाइल है यहाँ पे उसको चेंज करना, राइट। सबके लिए ये टास्क आप इसके बाद भी कर सकते हो, इस प्रेजेंटेशन के बाद भी। अब क्या करना है? ओके, लॉन्च लॉन्च गिट बैश। गिट बैश या फिनिश। तो क्या करना है? या सो बेसिकली अभी डेस्कटॉप पे जाओ, इसको छोड़ो, अभी डेस्कटॉप पे जाओ और डेस्कटॉप पे एक नई फाइल, नया फोल्डर क्रिएट करो डेस्कटॉप पे। एक सेकेंड। कैसा फाइल क्रिएट करना है? नया फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर। न्यू फोल्डर। हाँ जी, क्रिएट कर लिया फोल्डर को। गिट के नाम से क्रिएट करना है फोल्डर। या नो प्रॉब्लम, उसके अंदर जाओ, फोल्डर के अंदर जाओ। अब क्या करना है? फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक। हाँ यहाँ गेट बैश हेयर का ऑप्शन आ रहा है, राइट, लास्ट हाँ फिफ्थ। हाँ जी या उस पे क्लिक करो, या उस पे क्लिक करो। नाउ इस पे वापस जाओ अपने ब्राउजर पे, जो फोल्डर खोला था हमने, जो गिटहब खोला था, एक सेकेंड। या वो वाले टैब पे, गिट वाले टैब पे, एक सेकेंड, वो GitHub वाले। टैब ऊपर से। एक सेकेंड। हाँ जी, या उस पे आ गए। जो लिंक में जाता वही ना? हाँ हाँ, वो भाई उसी लिंक पे। या सो इस पे पहले तुम्हें इसको फॉक करना है, राइट। ऊपर फॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा टॉप राइट में, टॉप राइट में, या फॉक का ऑप्शन। सो बेसिकली मैं समझा देता हूँ फॉक का मतलब क्या है। फॉक से तुम्हारे पास लोकल कॉपी क्रिएट हो जाएगी तुम्हारे खुद के गिटहब अकाउंट में, राइट। सो अभी यहाँ पे दिखा रहा होगा तुम्हें ऊपर अमित त्रिपाठी 1025 प्रेजेंटेशन। सो ये अभी मेरे पास है, राइट। जो एक कोड है ये मेरे पास है। तो इसका आप तुम्हें कॉपी क्रिएट कर रहे हो गिट फॉक से, राइट। सो फॉक का मतलब यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट करना है, राइट। सो यहाँ क्रिएट फॉक पे क्लिक कर दो। तो देखोगे तुम यहाँ ऊपर नाम चेंज हो गया है, मधुर 727 लिखा हुआ आ रहा है। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास कॉपी हो चुकी है फाइल सारी। ओके हाँ जी, ओके, राइट नाउ अब ये तुम्हारे खुद के गिटहब अकाउंट में है बट ऑनलाइन। अब इसे तुम्हें ओके। अपने लोकल कंप्यूटर में ले आना है, राइट। हाँ जी, तो उसके लिए इसका जो एड्रेस है इसे कॉपी कर लो एड्रेस बार से, यूआरएल। यूआरएल जो और सेलेक्ट जो करा है मैंने, मैंने। या एग्जैक्टली। हाँ जी। और यहाँ पे अब लिखो नहीं, इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं, इसे काटो, इस वाले को काट दो। जो दूसरा टर्मिनल है जिसमें एड्रेस लिखा आ रहा होगा उस फोल्डर का, वो वाला कहाँ खोलना पर? है। एक सेकेंड, ये वाला? या इसमें लिखा रहा है डेस्कटॉप देन गेट, जो तुमने हाँ जी, फोल्डर बनाया हाँ था। हाँ जी। अब यहाँ पे लिखो गेट क्लोन It's space without space. विद स्पेस, Git clone. और उस एड्रेस को पेस्ट कर दो। राइट क्लिक से पेस्ट करना, राइट क्लिक से पेस्ट करना। एंटर। अब ये हो गया। हो गया क्या? ये एंटर कर दिया मैंने। हाँ उसमें आया ऑप्शन, मुझे तो अभी दिखा नहीं रहा। इसलिए स्क्रीन बड़ी कर सकती है एंटर करने के बाद। तुम्हारा स्क्रीन शेयर रुक गया है मेरे एंड पे, आई गेस। स्क्रीन मेरी शेयर दिखा रहा है मेरी तरफ तो पूरा। एक बार वापस स्टार्ट करना, स्क्रीन शेयर ऑफ करके ऑन करना। अब आ रहा है? या सही है। या सो इस स्टेप तक हमने फाइल की
दो कॉपीज क्रिएट की हैं, एक तो तुम्हारे गिटहब के अकाउंट में गई एक कॉपी, और उसके बाद अब दूसरी कॉपी है जो तुम्हारे लोकली सिस्टम पे है, राइट। सो अब हाँ ये जी। जो हमारी रेपोजिटरी है ना, रेपोजिटरी का मैंने पहले बताया था कि ये इसे फोल्डर कहते हैं रेपोज। तो ये प्रेजेंटेशन का एक फोल्डर क्रिएट हो गया तुम्हारे कंप्यूटर में, और इस पार्टिकुलर जो गिट फोल्डर जो तुमने बनाया है, तो अब क्लिक करो, राइट करो cd CD प्रेजेंटेशन स्पेस देके कैपिटल में कैप्स विद फर्स्ट लेटर या बस, एंड टैब दबा दो, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, एंटर। सो अब नाउ तुम उस फोल्डर में आ चुके हो, राइट, प्रेजेंटेशन वाले फोल्डर में, और यहाँ पे तुम्हें ब्रांच दिखा रहा है, आगे नोबिता लिखा है ना, नोबिता, उसका मतलब वो हाँ। ब्रांच तुमने खोल रखी है, ओके। राइट। तो अब वापस अपने विंडोज एक्सप्लोरर में जाओ, उस फोल्डर में जाओ, एक्सप्लोरर से या यहाँ पे अंदर जाओ फोल्डर में, तुम्हें एक फाइल दिख रही होगी नेम्स की, राइट, नेम्स की हाँ फाइल पे जी। अपना नाम ऐड कर दो। ओके। ये सबसे सिंपलेस्ट टास्क है अभी जो हम कर सकते नोट या बाकी बाद में तुम कोड पे भी करोगे, राइट, कोड में एडिट करोगे और उसे पुश करोगे चेंजेस को। कर दिया ऐड, बस अब सेव कर दूं इसे। हाँ या सेव कर दो, एंड नाउ वापस उसे ओपन करो टर्मिनल को। या सो बेसिकली अब हमने चेंजेस किए हैं, राइट। अब चेंजेस को हमें एक पहली बार चेंजिंग एरिया में ले आना है, और उसके बाद उसे गेट कमिट करके सेव करना है, राइट। तो उसके लिए पहले तुम डालो गेट ऐड डॉट स्पेस देके, स्पेस विद स्पेस। तो बेसिक डॉट का ये मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी ऐड हो जाएंगी वहां पे उस फोल्डर में। सो एंटर करो। तो अब वो फाइल ऐड हो गई स्टेजिंग एरिया में, राइट। सो अब नाउ क्लिक करो गेट कमिट डैश एम स्पेस विद स्पेस डैश एम, या now again space, अगेन। या ओपन एंड क्लोजिंग कॉमास में नहीं, कोट्स में, राइट। या इसमें बेसिकली जो हाइफन एम है इसका ये मतलब है कि तुम एक मैसेज डाल रहे हो जो तुम सेव कर रहे हो, राइट। तो इसमें डाल दो कि एडेड माय नेम, और नेम भी लिख देना अपना, मुझे शो होगा वहां पे कि किसने क्या चेंज किया है। अपना नेम डाल दो वहां पे आगे, या एंड इसे क्लोज करो, एंटर। जैसे वो कोडिंग में कमेंट्स होते हैं उसकी तरह हो गया ये। या नहीं, एक मैसेज है ये, राइट। इस मैसेज। ये जो तुमने सेव किया है ना, एक जो तुमने चेंज किया है, हर चेंज के साथ एक मैसेज डाल रहे हो तुम। ओके। एंटर करो। ओके, तो पहले यहाँ पे तुम्हें शायद अपना ग्लोबल और यूजर नेम सेट करना पड़ेगा, ईमेल। सो जो ये कमांड लिखी है ना, गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन एक ग्लोबल, राइट, उसी को वापस राइट करो सेकेंड। या उसे कॉपी पेस्ट कर दो बस पूरा पूरा आगे तक, पूरा आगे तक, यहाँ तक ये। या राइट क्लिक से करो, राइट क्लिक से कॉपी करो, एक सेकेंड। और राइट क्लिक से पेस्ट। जहाँ यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दो जो एग्जाम्पल है उसकी जगह, जो तुमने यूज की अपने गिटहब अकाउंट में, वो वाली सेम ईमेल। एंटर कर दो। या एग्जैक्टली। सो तुमने अपनी ईमेल ऐड कर दी, उसके बाद अपना नेम ऐड करना है। यूजर जो गिटहब पे यूजर नेम है। या एग्जैक्टली। बेसिकली गिट तुमसे इसलिए करवा रहा है कि हर पार्टिकुलर जो सेव है उसके साथ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, तुम्हारा ईमेल और तुम्हारा नेम। दैट इज व्हाई इसमें ऐड करना इम्पोर्टेंट है। एंटर कर दिया, राइट। हाँ जी, यूजर नेम में एंटर कर दिया। उसके बाद वापस गेट कमिट लिखो, मैसेज वही वाला गेट कमिट हाइफन एम, या कोट्स में मैसेज, राइट, एडेड माय नेम एंड दिस योर नेम।
तो यहाँ बोल रहा है कि तुमने एक नई फाइल ऐड की है और उसमें एक चेंज किया है, वन इंसर्शन, राइट। प्लस का मतलब एक नया चेंज, राइट। सो नाउ अब तुम इसे पुश कर सकते हो, राइट। गिट पुश पे डालो गिट पुश, एंटर। सर एक सेकंड कुछ और, ये आ रहा है मेरे पास अभी। या साइन इन विद ब्राउजर क्लिक कर दो, साइन इन विद ब्राउजर। एक सेकंड, ऑथराइज कर दूं कैसे होगा ये? या एक सेकंड, ना नहीं रहा है। अच्छा, पासवर्ड अच्छा था। अब क्या करना है? हो गया उसमें वापस फिर जाओ आपने, या एक सेकंड। इसमें, या देखो तुम इसमें दिखा रहा है कि डन, राइट। बेसिकली तुमने अपने चेंजेस पुश कर दिए हैं वापस अपने रिमोट रेपोजिटरी में। जो तुम्हारे पास ओके, ऑनलाइन कॉपी थी उसमें चेंजेस आ गए हैं। अब वो तुम उसे देख सकते हो ऑनलाइन, जो तुम्हारा अब मधुर वाला प्रेजेंटेशन था, रिफ्रेश करूंगा तो राइट। फिर आ जाएगा यहाँ पर। या रिफ्रेश करो इसे, आ गया, हाँ जी। या यहाँ पे आ गया ना कमेंट वाला जो मैंने टाइटल डलवाया हाँ था, एडिट माय नेम हाँ मधुर गुप्ता। हाँ जी, और नेम्स वाली फाइल खोलो, उसमें तुम्हें नेम्स दिखाएगा। हाँ जी, आ गया। ओके, बैक जाओ। सो बेसिकली अब ये चेंज तुम्हारे पास ही है सिर्फ, अभी ये चेंज मेरे पास नहीं आया है, राइट। तो इस ओके, चेंज को मेरे पास भेजने के लिए तुम्हें एक पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। सो पुल रिक्वेस्ट यही है कि जब तुम अपना चेंज कंप्लीट कर लो तो तुम ओरिजिनल डेवलपर को बताओ कि हाँ जी मेरा चेंज कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसे अपने ओरिजिनल रिपोजिटरी में मर्ज कर सकते हो इस चेंज को, ठीक है। हाँ जी, तो उसके लिए तुम्हें पुल रिक्वेस्ट ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दिखा रहा होगा वन कमिट अहेड, राइट। मतलब एक चेंज, नया चेंज हुआ है, राइट। वहाँ पे उस ये पर क्लिक यहाँ पे करोगे तो लिखा। तुम्हें दिखाए, या उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखाएगा कि क्या चेंज हुआ है, राइट। क्या नया फाइल ऐड हुई है, क्या नया टेक्स्ट ऐड हुआ है। दिखा रहा है ये रहा। उसके सामने प्लस लिखा रहा होगा, प्लस का मतलब एडिशन हुआ है, राइट। या सो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करो अब इसका नाम भी डाल सकते हो तुम, एडिट माय नेम, वो पहले से आ गया जो तुमने डाला था हाँ नाम, जी, राइट। अब बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो, या सो बेसिकली अब तुमने अपनी पुल रिक्वेस्ट ओपन कर दी है। और अब यहाँ पे ऊपर नाम देखोगे तो मेरा नाम आ गया होगा, अमित त्रिपाठी, हाँ राइट। तो अब जी, तुम मेरी डायरेक्टरी में पहुंच चुके हो बेसिकली। ओके, अब ये चेंज तुमने मेरे पास भेज दिया है, अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है, राइट। अब मुझे उस तुम्हारे चेंज को मर्ज करना है या नहीं करना, वो मेरे हाथ में है, राइट। सो हाँ अपनी जी, स्क्रीन शेयर बंद कर दो, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब यहाँ से। ओके। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? हाँ जी भैया, हो रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक पुल रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ पे देखिए दिखा रहा होगा आगे वन, राइट। इस पर क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे दिखागा कि किसने अपनी नेम ऐड किया, किसने क्या चेंज किया, राइट। तो यहाँ पे आ गया जो मधु ने चेंज किया था, अपना नाम ऐड किया था, एडिट माय नेम मधुर गुप्ता। इस पर क्लिक करूंगा मैं तो मुझे दिखाएगा यहाँ पे क्या चेंज किया इसने। अगर मैं कमिट्स में जाऊंगा और कमिट्स में इसके बाद इस पर क्लिक करूंगा, इस तो इस यहाँ पे दिखा रहा है कि एक नया नेम ऐड हुआ है, एक नई फाइल ऐड हुई, एक नया चेंज ऐड हुआ है बेसिकली, राइट। सो तो अगर मुझे इसे ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा रिव्यू चेंजेस पे, एंड लुक्स गुड टू मी, राइट। ये सही चेंज मुझे सही लगता है तो मैं लिख दूंगा लुक्स, बेसिकली यही लिखते हैं मोस्ट डेवलपर्स। एंड आई वुड सबमिट रिव्यू एंड फाइनली इसे मर्ज कर लूंगा, मर्ज का मतलब मैं अपने इससे मेन कोड में मर्ज कर रहा हूँ, राइट, जो सबको दिखेगा। जैसे ये चेंज मर्ज होगा तो वहां पे लिखा आ जाएगा उस पुल रिक्वेस्ट के सामने कि ये चेंज मर्ज हो गया, राइट। एडिट माय नेम मधुर गुप्ता, राइट। सो अब मैं अपनी फाइल खोलूंगा जो मेरा ओरिजिनल कोड है, राइट। ये कोड मेरे पास था, ये मधुर के पास नहीं था, ये वाला कोड, ये वाला कोड मेरे पास था। और उसमें मैं देखूंगा तो एक नया नाम ऐड हो चुका होगा, मधुर गुप्ता। सबको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। सो अब यहाँ से सबका टास्क है कि सारे लोग अपना नाम ऐड करें इस फाइल में, राइट। देखते कितने लोग ऐड कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं जो तुम लोग को जरूरत पड़ेगी, राइट। डाउनलोड इंस्टॉल गिट फ्रॉम वेबसाइट, फॉर्क दिस रेपोजिटरी, देन क्लोन दिस रेपोजिटरी,
देन मेक सम चेंजेस एंड उसके बाद गिट ऐड करना, गिट कमिट करना, उसके बाद उस चेंजेस को पुश करना एंड उसके बाद उसको फाइनली या पुश करना, तो उससे वो फाइल अपलोड हो जाएगी, राइट। सो सारे स्टेप्स यहाँ मैंने डिटेल में लिखे हुए हैं, और किसी को करना हो तो कर सकता है, अपना नेम ऐड कर सकता है, राइट। ये टास्क है तुम लोग के लिए, जितने भी अभी हैं साथ में लोग अटेंडीज हैं जितने। सो विद दैट किसी को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होगा तो मैंने रिसोर्सेज लिख दिए स्लाइड में, और ये स्लाइड तुम लोगों को मिल जाएगी बाद में। एंड एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव राइट नाउ, कोई पूछ सकता है अपने क्वेश्चंस। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो ओपन सोर्स गिट और गिटहब के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है। Yeah, we can see one guy. उनको अनम्यूट कर दो, आन्या। हेलो भैया। Did you can ask? Yeah, hello. हेलो भैया, अमेजिंग सेशन। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मतलब हमें पता क्या चलेगा कि किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में मुझे कंट्रीब्यूट अगर करना शुरू करना है तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है मेरे डोमेन के हिसाब से? उसमें तुम टेक्स्ट तक जाके देख सकते हो ना, राइट। अगर जैसे सपोज ये मैं यहाँ लिखता हूँ फायर, स्क्रीन शेयर हो रही मेरी, नहीं हो रही। अगर जैसे तुम गूगल पे जाओगे, राइट, उस पर तुम्हें वैसे काफी सारी साइट्स पहले से हैं ऑलरेडी अवेलेबल। उसके बाद भी अगर तुम्हें पार्टिकुलर टेक्स्ट स्टैक का जानना है तो तुम गिटहब पे जाओ और उसमें सर्च में डाल दो, राइट, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, और उसके साइड में शो भी होता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें इस्तेमाल हुई है इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, राइट। उसके बाद मोस्टली लोगों का यही गोल रहता है कि उनको जीसॉक निकालना, राइट। आई गेस तुमने भी सुना होगा अभी तक जीसॉक के बारे में। सुना। सो अगर जीसॉक की वेबसाइट पे जाओगे तो उस पर भी ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, और उसका ये फायदा है कि वो एक्टिव बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो अगर तुम उसमें हेल्प मांगोगे तो तुम्हें वो हेल्प भी कर देंगे। तो उसमें जाओगे और उसमें हर कंपनी का ना, हर प्रोजेक्ट का नीचे लिखा होता है कौन सा टेक्स्ट स्टैक इसमें इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज, राइट। सो उस पार्टिकुलर रेपोजिटरी में जाओ, और वहाँ पे उनका एक मेलिंग चैनल भी होता है, उसे आई गेस याद नहीं आ रहा मुझे, आरटीसी कुछ कहते हैं उसे। अब तो मोस्टली डिस्कॉर्ड पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो डिस्कॉर्ड पे भी जाके तुम पूछ सकते हो कि इसमें कैसे स्टार्ट करना है मुझे कंट्रीब्यूशन, और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं वो लोग जो जीसॉक वाले होते हैं। और जो मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके वो बेसिकली वो लोग चाहते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा से ज़्यादा नए कंट्रीब्यूटर्स हमसे जुड़ें ताकि हमारा प्रोजेक्ट इंप्रूव हो। दैट्स वाई वो तुम्हारी हेल्प करते हैं इस काम को करने में। तो आई गेस दैट्स आंसर योर डाउट। ओके भैया, थैंक यू। या Anyone else with some doubts? आर्यन भी, आई गेस आर्यन को बना दो, परमिशन दे दो। Then you can ask. Aryan Pillai, please ask your doubt. Okay, anyone else? Aryan might not be here, I guess, for the moment. किसी और को पूछना तो वो पूछ सकता है। सो आई गेस अभी किसी का डाउट नहीं है। सो अगर तो किसी को डाउट हो भी तो मुझे लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, राइट। मैं बाद में लिंक्स भेज दूंगा। एंड विद दैट मूविंग ऑन फर्दर टू द स्लाइड्स। सो
Let me share it again. Yeah, so guys, thank you for your time, right? Thank you for being here. और किसी को डाउट्स जानना है या किसी को फॉलो करना है तो फॉलो कर सकता है इस लिंक से, हम एनसीसी वालों को, राइट? और उसमें सारे तुम्हें ग्रुप्स मिल जाएंगे तुम्हारे रिलेटेड, तुम्हारे टेक स्टैक के रिलेटेड, राइट? तो इन्हें स्कैन कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो बाद में फॉलो करने के लिए. Thank you, everyone. As we conclude this event, we encourage you all to seek out new challenges and pushing the boundaries of what you can accomplish. Remember that success is not just about winning competitions, but about the journey of growth and improvement that comes with it. With that being said, now it's time to wrap up this session. It was really good to see your enthusiasm and passion till the end. But before we end, I want everyone to scan the QR code so that you can avail the certificate for the session. I repeat, you can now scan the code to receive your certificates respectively.